Yes, hello, students and the viewers. Now, in this video, I will let you know the uses of non-finites. Okay, the word is your comfort. The same word, comfort, we are using in non-finites because non-finites are what? They are the verbs. Now we are using this as this is a verb. Now we are using as non-finite. They are not the finite verbs. These five forms are not the finite verbs. We use these five forms in tenses. First form, second form, third form, ACS form, ing. We use them in tenses. Now we are using this non-finites as comfort, same comfort. First comes our to infinitive. Okay, to infinitive. What is the placement of to infinitive? कहाँ पे use करते हैं to infinitive? And what is to infinitive? First of all, you should know it. आपको ये जानना जरूरी है कि to infinitive है क्या? To के साथ अगर कोई वर्ब हमें मिलता है to प्लस ए फाइनाइट वर्ब, कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म. टू गो, टू प्ले, टू सिंग, टू डांस, टू रीड, टू राइट, ये अगर हमें मिल जाता है तो सोचो ये टू इन्फिनिटिव है. व्हाट डू वांट? आई वांट टू वॉच धुरंधर 2. व्हाट डू वांट? आई वांट टू वॉच. टू वॉच, टू इन्फिनिटिव. ओके, वांट इज मेन वर्ब, टू वॉच. तो अब that is your expectation. I would like to watch. So to watch is your to infinitive. Similarly, to comfort, I want. What do you want? I want to comfort my family. Great leaders, they want to comfort the whole society. Okay, Modi ji wants to comfort 140 crores people of India. अब ये मत समझना कि I am okay. It is any great leaders, those who are great leaders, you have to accept it. आपको मानना पड़ेगा. Okay, so that's why it's true. A great leader doesn't think for himself or herself. He or she thinks for the society. हम छोटे लोग हैं, हम ज्यादा बड़े नहीं हैं. हमारी सोच क्या है? We think for our family, isn't it? So I want to comfort my family. हाँ, परिवार अच्छा रहे तो अच्छा लगता है. Okay, they are not suffering from any angle, economically or any problem. So that's why I want. What do you want? To comfort my family. Everybody wants to comfort his or her family, isn't it? Common people, we want to do that. Then only satisfaction comes. अगर हमें फैमिली को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं तो that life is useless. Yeah. So now to comfort. Now you can make a sentence with to comfort. Try करना चाहिए आपको. I would like to comfort my society, isn't it? So to and comfort, this is called to infinitive. कौन से प्लेस में यूज हुआ? टू इन्फिनिटिव. ऑब्जेक्ट का प्लेस ले लिया. आई वॉन्ट व्हाट, व्हाट का प्लेस में टू इन्फिनिटिव आ गया. आई वॉन्ट टू कंफर्ट, आई वुड लाइक टू कंफर्ट. सी द सेंटेंसेस. नाउ आई थिंक यू गॉट इट. मोर प्रैक्टिस इज नेसेसरी फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अगर बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. नो वे, नो अदर वे. शॉर्टकट नहीं है इसका. मोर एंड मोर प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस यू कैन डू फ्रॉम योर नॉन फाइनाइट चैप्टर पैराग्राफ. सॉरी, योर नॉन फाइनाइट प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस आर देयर. यू शुड गो थ्रू. आपको करना चाहिए. ओके, ऐसे कमांड नहीं आ जाएगा कि नहीं आई वांट टू गेट द कमांड ओवर इंग्लिश ग्रामर. कैसे आ जाएगा? अनलेस यू वर्क हार्ड. मेहनत करोगे नहीं, ओनली यू आर थिंकिंग बट यू आर नॉट डूइंग. ओके, वो सोच में ही रह जाएगा. कभी प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. सी नाउ हियर कंफर्टिंग. ये कंफर्टिंग टेंस वाला कंफर्टिंग नहीं है. ये ध्यान रहे. इसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं. ये जो 5 फॉर्म्स में मैंने आईएनजी बताया था, इसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है. टोटली डिफरेंट. ये जो कंफर्ट के साथ आईएनजी लग गया, इट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके, कैसे होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल में कंफर्टिंग कैसे आ जाएगा? इट इज okay. See, the situation is here comforting is a non-finite participle. It comes at the 4th place in a sentence. Just I am showing you. Yeah, observe the sentence. Technically you have to understand it. Okay, it's a little tricky कि जैसे मैंने कहा था कि ये जो present participle is, it is not the form of verbs. ये मेन वर्ब का फॉर्म बिल्कुल नहीं है. इसको आपको समझना पड़ेगा ठीक से. आईएनजी लग गया मतलब मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म. नो, इट इज पार्टिसिपल.
यूज कहाँ पे होता है इसका? फोर्थ प्लेस में। जब जहां तक प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात है, यह फोर्थ प्लेस में यूज होता है। देखो फोर्थ प्लेस कैसे है? ऑफन, ऑफन इज व्हाट? एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ऑलवेज, ऑफन। आई क्या है? सब्जेक्ट। ये इसे पार्ट कर लो, नंबर 1 यहीं से काउंट करो 1। फाइंड क्या है? पाता हूं, मैं पाता हूं। क्या है? ये वर्ब है कि नहीं? ये सब्जेक्ट है तो ये मेन वर्ब है। फाइंड मेन वर्ब है, ये आईएनजी वाला मेन वर्ब नहीं है। आई फाइंड किसको पाते हो? माई मॉम। ऑफन आई फाइंड माई मॉम कंफर्टिंग। कंफर्टिंग, ये जो फोर्थ प्लेस ले लिया ये है प्रेजेंट पार्टिसिपल। ऑफन आई फाइंड माई मॉम कंफर्टिंग अदर्स, क्योंकि वो इनका हैबिट है, सबको, परिवार को देखभाल करना, सबको खुश रखना। दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मोस्ट ऑफ द मदर्स। सारे मम्मी यही करती है, बुझेंगे, टू गिव ऑल टाइप्स ऑफ कंफर्ट्स। खुद के लिए इतने नहीं सोचती है जो सभी फैमिली मेंबर्स के लिए। दैट्स वाई ऑफन आई फाइंड, हमेशा मुझे मिलता है। क्या मिलता है? किसको मिलता है? माई मॉम। ये थर्ड प्लेस। ऑब्जेक्ट आई फाइंड टू whom क्वेश्चन पुट करो, ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। व्हाट एंड टू whom आई ऑलरेडी टॉट यू अर्लियर। तो माई मॉम, ऑफन आई फाइंड मॉम क्या कर रही है? किस स्थिति में मिलता है? कंफर्टिंग, कंफर्ट करते हुए, कंफर्ट देते हुए मुझे मिलता है। ऑल द फैमिली मेंबर्स, सभी फैमिली मेंबर्स को वो कंफर्ट के देते हुए स्थिति में मुझे मिलता है। तो ये फोर्थ प्लेस में यूज होता है। इन दिस वे इफ यू ट्राई you can do it. Okay, now comforting is your present participle. Got it? Now come to your past participle. What is that? ये comforted, same thing, not here the second form or third form. No, ये comforted is your past participle form. ये non finite की बात हो रहा है सारे। तो comforted third form, where to use? ये this also comes at the fourth place in a sentence. ये भी fourth place लेता है। देखो कैसे होता है। Just I am going to write the sentence. Follow me. Yeah. Now let us see the past participle. Okay. Here is also the third form of the main verb. But here, as I told you, it is not the main verb now. It is non-finite participle form. Comforted third form, but here we are using at the fourth place. As we used present participle at fourth place, similarly we are using comforted in fourth place. Okay, a little tricky, but you try to understand it. You can see the sentence and you try to understand its meaning also. Often I found my parents. Often, aksar, I, subject, found, paya, second form of find. Often I, subject, first see, found, second. To whom, किसको पाया? My parents. Often I found my parents. मैं अपने पेरेंट्स को पाया। किस हालत में? Comforted my grandparents. वो मेरा ग्रैंड पेरेंट्स को वो कंफर्ट देते थे, यानी उनका सारे सुविधाएं, ओल्ड थे वो लोग, बुजुर्ग थे, ओल्ड थे, तो पेरेंट्स उनको ध्यान रखते थे। ओके, nowadays situations are gradually getting crucial, difficult, but it was there really. तो my often I found, मैंने पाया, किस हालत में? My parents comforted my grandparents. ग्रैंड पेरेंट्स को वो कंफर्ट देते थे, यानी उनको सुविधाएं, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या जरूरत है, उसको पूरा करना। तो हमने वही सीखा है कि हाँ, ये करना मैंडेटरी होना चाहिए। ओके, सो ये दिस फैमिली बेस्ड टीचिंग, ओके, यू व्हाट यू आर लर्निंग, जिसे कहते हैं संस्कार, तो वो जरूरी है। हाई हेलो से काम नहीं चलता। ओके, यू हैव टू टच द फीट ऑफ गुरु और यू हैव टू रेस्पेक्ट द गुरु, देन ओनली यू कैन गेन समथिंग। ओके, ऐसे नहीं चलता कि हम रेस्पेक्ट ना करें। और हम जो करेंगे, आज के टाइम में क्या हो रहा है, बूढ़े माँ बाप को जाके दे के आ रहे हैं वो वृद्धाश्रम में, तो उनका बारी भी आएगा कमिंग डेज में। वो कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाने वाले हैं, उनको उससे भी बुरा हाल सफर करना पड़ेगा। दैट इज द थिंग, रियलिटी इज दैट, दैट इज डिफरेंट इशू। सी, लेट अस सी नाउ। ऑफन आई फाउंड, मैंने पाया, किसको? माई पेरेंट्स।
किस हिसाब से किस क्या देखा आपने, क्या पाया, कंफर्टेड, वो कंफर्ट करते थे, कंफर्ट क्या करते थे, या माई ग्रैंड पेरेंट्स। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड, जब मैं एक छोटा बच्चा था तब मैंने ये ऑब्जर्व किया, तो मैंने नोटिस किया या ऑब्जर्व किया, व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड। ओके, सो दिस इज कॉल्ड योर, दिस कंफर्टेड इज योर पास्ट पार्टिसिपल। गॉट इट? ये ट्रिक ही है, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझना पड़ता है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग ना, यू नीड टू understand the advanced grammar, advanced English grammar for uses of non-finites. Complex sentences, all the complex sentences can be converted into simple sentences by using the non-finites also. One thing is your phrases, noun phrase, adjective phrase, adverb phrase. Another thing is your all the participles. Okay, now here we are talking about the participles. Now past participle, I think you got it. Yes. Now let us see the past perfect participle. What is that? Let us see. Yeah, see now, past perfect participle. So there is a rule. We have to notice, we have to follow or understand what is past perfect participle. The rule is your having plus MB3. When two same tense sentences we want to join, एक जैसे tense, same subject, I want to join. For example, I get up early, full stop, I go for a morning walk. I get up early, full stop, I go for a morning walk. Having got up early, comma, I go for a morning walk. Okay, subject is same I, तो यहाँ पे having से करो, having के बाद get up नहीं आएगा, got up, third form, having got up early, comma, I go for a morning walk. So which tense the sentence is in present tense, तो यहाँ पे got up कैसे हो गया, हाँ ये rules है, having got up. Okay, उठने के बाद, कल की बात करो, yesterday I got up early, full stop, yesterday I got up early, I went for a morning walk. Having got up early, I went for a morning walk. तो इसे हमें पता चलता है went लग गया तो ये past tense है, having get up की जगह having got up हो गया, I go for a morning walk ये present tense है. Tomorrow I will get up early, I will go for a morning walk. Having got up early, I will go for a morning walk. तो सेकंड पार्ट से हमें पता चलता है कौन सी टेंस है, पास्ट फर्स्ट टाइम में पता नहीं चलेगा। जैसे पैसिव वॉइस में हर टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब लगता है। आप सोचोगे थर्ड फॉर्म फ्यूचर टेंस है, यस फ्यूचर टेंस में भी थर्ड फॉर्म, तो कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है। तो इंग्लिश में ऐसे है जो रूल्स लर्न करना होता है, ये रूल्स है कि हैविंग प्लस MB3। तो आप देखो उसी सेंटेंस को हम दोहरा रहे हैं, जैसे कंफर्टिंग, okay, I found my parents comforting my grandparents. Now here you see, having comforted, having plus MB3, comforted, having comforted my grandparents, they means who, my parents. Having comforted my grandparents, they got relaxed. वो खुश हो जाते थे, अच्छा लगता था, they got relaxed. हम हमारी जिम्मेदारी ठीक तरीके से हमने करने की कोशिश की, they got relaxed. So having comforted, okay, it is a rule. So when same subject, the children returned from the school, they went to play. The children returned from the school, returned simple past tense है, they went to play, they मतलब क्या, children. तो two incidents in sequence, subject same. तो having returned from the school, the children went to play, दे के जगह children लगा दो यहाँ पे, तो क्योंकि एक जगह तो नाउन लगाना पड़ेगा ना। हैविंग रिटर्न फ्रॉम द स्कूल, दे नहीं है, दे पता कैसे चलेगा, तो दे मीन्स हियर हैविंग रिटर्न फ्रॉम द स्कूल द चिल्ड्रन वेंट टू प्ले। दिस इज द फॉर्मूला। सो इफ यू नो द फॉर्मूला यू कैन इजीली यूज द पास्ट पार्टिसिपल। ओके, तो हैविंग कंफर्टेड हमने यूज कर दिया पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल ने, दिस इज पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल, ये थर्ड फॉर्म है, हैविंग प्लस कंफर्टेड ये थर्ड फॉर्म है, इसलिए पास्ट परफेक्ट बताया जाता है, पास्ट परफेक्ट पार्टिसिपल। नाउ बचा एक कंफर्टिंग। आई एम टेलिंग द सेम थिंग, इट इज नॉट दिस कंफर्टिंग ऑफ टेंस का जो कंफर्टिंग है वो कंफर्टिंग नहीं है, ये जिरंड है, ये सब्जेक्ट का प्लेस लेता है, फर्स्ट प्लेस एंड थर्ड प्लेस। फर्स्ट प्लेस जब लेता है और थर्ड प्लेस लेता है तो नाउन हो जाता है, ये वर्ब नहीं है, ये कंफर्टिंग इज नॉट वर्ब, रिमेंबर। सो आई विल शो यू राइट नाउ। ओके, लेट अस सी।
Yeah, now you see the last one is our gerund. Okay, it is the last number of your non-finites. So gerund is what? ing form of the verb. But it doesn't use, we don't use it at the second place like your tenses. Tense के place में बिल्कुल नहीं होगा. It takes either the first place or the subject place or the object's place, first or third place. क्योंकि it is noun. ये gerund comforting is not a verb, it is a noun. आपको ये समझना पड़ेगा. Noun, yeah, it is comforting. तो now see, you know, ऑब्जेक्ट का जो प्लेस नाउन का प्लेस होता है या प्रोनाउन का प्लेस होता है ना, ऑब्जेक्ट. तो नाउ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्लेस में ए आता है. ये कंफर्टिंग हम यहीं पे भी यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के प्लेस में भी यूज कर सकते हैं. लेट अस सी हाउ. आई इज सब्जेक्ट, लाइक इज मेन वर्ब. आई लाइक व्हाट क्वेश्चन पुट करो. आई लाइक व्हाट. तो कंफर्टिंग ये है ऑब्जेक्ट. किसको? माई फैमिली. आई लाइक कंफर्टिंग माई फैमिली. तो ये एडजेक्टिव का भी रोल प्ले करता है. ये यहाँ पे माई फैमिली नाउन, आई लाइक माई फैमिली, आई लाइक कंफर्टिंग माई फैमिली. तो ये एडजेक्टिव का भी पार्ट है ये, जो कि कंफर्टिंग किसको? फैमिली को कंफर्ट कर रहे हो. तो आई लाइक कंफर्टिंग माई फैमिली. कंफर्टिंग टू हुम? माई फैमिली. तो ये देखो, कंफर्टिंग इज योर कौन सा प्लेस ले लिया? ये फर्स्ट प्लेस, ये सब्जेक्ट फर्स्ट प्लेस, ये लाइक मेन वर्ब, ये मेन वर्ब, ये दिस इज कंफर्टिंग थर्ड प्लेस ले लिया. आई लाइक कंफर्टिंग. ओके, सिमिलरली दैट कंफर्टिंग, जैसे आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक ईटिंग स्वीट्स, चिल्ड्रन लाइक ईटिंग स्वीट्स. ईटिंग इज व्हाट? नॉट मेन वर्ब, लाइक इज मेन वर्ब. द चिल्ड्रन लाइक ईटिंग. क्या ईटिंग? स्वीट्स. स्वीट्स इज नाउन. तो ईटिंग एडजेक्टिव पर भी रोल प्ले कर रहा है. चिल्ड्रन लाइक ईटिंग स्वीट्स. ओके, आई डोंट लाइक स्मोकिंग. स्मोकिंग थर्ड प्लेस. आई डोंट लाइक स्मोकिंग. तो ये फर्स्ट प्लेस भी लेके आओ. स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज. स्विमिंग स्टार्ट आगे. स्विमिंग क्या है? यहाँ पे नाउन है स्विमिंग. ओके, एंड इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ. स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज. आई लाइक स्विमिंग थर्ड प्लेस में चला गया. तो जो थर्ड प्लेस में अगर वो जा सकता है तो फर्स्ट प्लेस में भी आ सकता है. ओके, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज. स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ. आई डोंट लाइक स्मोकिंग. ओके, सो ऑल दीज आर स्पेसिफिकेशन इज देयर. कंफर्टिंग जब नाउन होता है तो हमें दो ही प्लेस में, गलती से भी हम सेकंड प्लेस में हम यूज करने की कोशिश नहीं करेंगे. सारे हौस-पौस हो जाएगा सिस्टम. Everything is systematical. Systematically we use them. Okay, nothing is disorder here. कुछ भी डिसऑर्डर नहीं है इंग्लिश में. ओके, पूरी फॉर्मूला बेस्ड है, लाइक योर मैथमेटिक्स. एब्सोल्युटली मैथमेटिक्स है. नो क्लैश, नो कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि सबका प्लेसमेंट्स अलग अलग है. कम एमबी जो एसवीओ, ये केवल यही है फाइनाइट वर्ब. ये जो 5 फॉर्म्स है इसी में आता है और कहीं पे इसके प्लेस नहीं है. ओके, ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, कहीं कोई भी मेन वर्ब का प्लेस नहीं ले रहा है. सभी मेन वर्ब का प्लेस छोड़ के अपना अपना अलग अलग प्लेसमेंट्स है सभी का. सो दैट्स व्हाई यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. नाउ कंफर्टिंग, एज आई वाज टेलिंग, आई लाइक कंफर्टिंग माय फैमिली. कंफर्टिंग माय फैमिली इज माय बेसिक प्रायोरिटी. कंफर्टिंग माय फैमिली, कंफर्टिंग से मैंने स्टार्ट कर दिया. कंफर्टिंग माय फैमिली इज माय बेसिक प्रायोरिटी. मेरा पहला प्रायोरिटी क्या है? फैमिली को कंफर्ट देना. कंफर्ट, सो दैट इज द थिंग. तो इन दिस वे इफ वी सी कि हाउ मेनी यूजेस, सो मेनी. आपको ट्राई करना चाहिए कि आपको कोई भी एक वोकाब लेके वर्ब फॉर्म में, क्या ये पॉसिबल है इसको हम एडजेक्टिव में कन्वर्ट, एबल लगा सकते हैं, एबली सफिक्स लगा सकते हैं. इन दिस वे यू शुड ट्राई. ओके, मेरा single word, so many things you see, the multiple uses I am telling na. Now your number of, you are facing problem because you think no I don't have enough vocabs. मेरे पास बहुत सारे vocab नहीं है, मैं क्या करूं? Because you need to learn this. ये टेक्निक एक बार सीख जाओगे तो आपके पास vocabulary का भरमार, बहुत सारे vocabularies है. Large number of vocabularies you can use as per your requirements are concerned. आपको कोई परेशानी नहीं होगा. ओके, थोड़ा बहुत तो मेहनत करना ही पड़ता है. Okay, automatically nothing can happen. Okay, now I think got it. yes. Okay, thank you.